براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ امانویل خدا ہمارے ساتھ، یہ ایک ایسا پیغام جو آسمان سے دیا گیا تھا۔ اس دور کے دیوی دیوتا مندروں میں رہتے تھے، مختلف آسمانوں پر تصور تھا، انسانوں سے دور، لیکن ایسا خدا جو انسانوں کے درمیان انسانوں کے ساتھ رہے، اس خدا نے اپنا پیغام، اپنا مکاشفہ، اپنا بھید نسل انسانی پر کھولا، اور یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت بنی نوع انسان تک پہنچی، کیونکہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس نے 10 احکام خود تحریر فرما کر انسانوں تک پہنچائے تھے، اور اس سے مراد یہ تھی کہ یہ باتیں ان کے پاس رہیں، ان تک پہنچیں، ان کی عقلیں روشن ہو جائیں، ان کو ہدایت اور احکامات مل جائیں کہ خدا انسانوں سے کیا چاہتا ہے۔ انسان مختلف دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کی پرستش کرتے ہوئے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن بھول بھلائیوں میں رہتے تھے، لیکن خدا نے اپنا پیغام پہنچایا، اور اس بات کا اعلان یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایسا خدا جس کے بارے میں قرآن، توریت، انجیل اور زبور اس کے کردار، اس کی صفات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ان باتوں کو سمجھنے سے ماضی میں بھی قاصر رہے، نظر انداز کرتے رہے۔ جنہوں نے سمجھا برکات پائیں، جنہوں نے نہیں سمجھا آج تک اندھیروں میں ہیں۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اور اس محبت کو اگر آپ نے جاننا ہے تو عبرانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اگاپے، ابدی، بے غرض، قربان ہو جانے والی محبت، بچا لینے والی محبت، سنبھال لینے والی محبت، حوصلہ دینے والی محبت، اس زمین پر وہ ہدایت جو انسان کو دی گئی اور وہ ابدیت میں لے جانے والی محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اور اس کے جو پیروکار ہیں، وہ خدا جو محبت کا خدا ہے، موت کا نہیں ہے، نفرت کا نہیں ہے، جھگڑوں کا نہیں ہے، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہ دینے والا خدا ہے۔ جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تو تمام نباتات، چرند پرند جو اس نے بنائے تھے، آدم اور حوا کو دے دیا کہ لطف اندوز ہو۔ اس دینا اس کا خاصہ ہے۔ آج سمجھنا، انسان کی عقلوں کا روشن ہونا، اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جب بیٹے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ بیٹے کے لیے یہ لفظ بیٹا، کسی کے صلب سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن بیٹے کو کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر کہتے ہیں لاکھوں فرزندان توحید نے حج ادا کیا۔ اب جب یہاں پر بیٹوں کی بات کی گئی ہے، لاکھوں فرزندان، تو کبھی میاں بیوی کا جنسی تعلق اس میں نہیں آتا۔ اس پر ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، لیکن میں یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں شہرا کا بیٹا ابن شہرا، شہرا سڑک کا بیٹا جو سفر کرنے والا ہے، اس میں کوئی میاں بیوی اور جنسی تعلق نہیں آتا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ بیٹا کلمہ کہا گیا ہے، متکلم کہا گیا ہے۔ متکلم کا کلمہ جو اس کے منہ سے نکلا ہے، اندر کلمہ اندر ہے،
और कुरान कहता है मसीह के बारे में कलमतुल्लाह, कलमा अंदर से निकला है, मुतकल्लम और कलमे को जुदा नहीं किया जा सकता। इस पर भी आने वाले दिनों में बात करूंगा। लेकिन आज जो सूरत हाल बनी हुई है, जब लोग हमारे फेसबुक पेजेस पर आते हैं या जिंदगी टीवी को देखते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए हमारा पैगाम पैगाम मोहब्बत और जिंदगी है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसके बारे में कुरान कहता है पाकीज़ा बेटा, जिसमें गुनाह नहीं है। अहादीस कहती हैं कि उसकी वालिदा मुकद्दसा मरियम को और यीशु मसीह को शैतान छू नहीं सका। वो मोहब्बत का पैगाम जो उसमें आ जाता है, वो शैतान के इख्तियार से निकल जाता है। वाज़े पैगाम, वाज़े निशानी है। और जो लोग शैतान की राह पर चल रहे हैं, अंधेरे में मौत के शिकार हैं, झगड़ों में पड़े हुए हैं, और फिर भी उनके सामने मौत हर रोज आ खड़ी होती और इंसानों को छीन कर ले जाती, फिर भी कहते हैं जिंदगी की राह, मोहब्बत की राह। किसको धोखा है? उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में जो लोग प्रोग्राम फजल रबी देखते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम में हूं, ये प्रोग्राम है, तो खुदा ताला ने ये खुद अपने फजलो करम से मुमकिन किया है। और इस प्रोग्राम में पहले भी और आज मैं कह रहा हूं और आने वाले दिनों में भी, अगर कोई शख्स तनकीद करता है, अगर कोई शख्स इल्जाम लगाता है, तो पहले प्रोग्राम्स को देखें, फेसबुक पेजेस पर क्या लिखा है उसको पढ़े। सूरह अल निसा और उसकी 82 वर्स, क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते? गौर करने की बात है, पहले आप पढ़ें। अगर उसमें आपको कोई ऐसी बात मिले जो तफसीर दुरुस्त नहीं है या किसी भी हस्ती को कम किया गया है उनकी इज्जत को, तो उस पर तो बात की जा सकती है। जब ऐसी बात है ही नहीं तो गौर करने की बात है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैगाम मोहब्बत है, पैगाम कबूलियत है जितनों ने उसे कबूल किया, और फिर जिंदगी का पैगाम है, उन्होंने हमेशा की जिंदगी पाली। अब ये टीवी जो मसीही पैगाम पहुंचा रहे हैं, यह जिंदगी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और जो लोग कहते हैं कि ईसा मसीह हमारे नबी हैं, तो पीरों की बातों पर चलना, फकीरों को इज्जत और एहतराम देना, उनकी बातों को खुदा की बातों से भी बाजुकात बढ़कर मानना। लेकिन जब नबी कहा जाता है, मसीही खुदावंद मानते हैं, तो उनकी बातों की तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उनकी तालीमात की तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। जब उनके अकवाल हम तक पहुंचते हैं तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। क्या जब मसीह की बात की जाती है तो क्या इस्लाम से बाहर किसी हस्ती की बात की जाती? इस्लाम के जितने अंबिया का जिक्र कुरान में मौजूद है, मैं आज दावत दे रहा हूं पूरी दुनिया के अपने मुसलमान बहन भाइयों को कि आप गौर खोज कीजिए, पढ़िए तमाम अंबिया की हयात तैयबा, और फिर देखिए आसमान ने क्या पैगाम पहुंचाया है। हम किसी भी मजहबी हस्ती को कम या ज्यादा दर्जा नहीं देते। और अगर मेरी इस बात को से कोई इख्तिलाफ करता है तो सूरह अल बकरा उसकी 136वीं आयत का मुतालिया बार बार कीजिए। और मैं तो ये दावा देता हूं कि ये अल बकरा 136वीं आयत हर एक मुसलमान और मसीही के घर में लगी होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो जवान हो रहे हैं और जो नौजवान इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर क्या पैगाम दिया गया है। हम अंबिया इकराम में फर्क नहीं करते, हम कुतुब में फर्क नहीं करते। और अगर कोई शख्स फर्क करता है तो इस आयत को पढ़े कि लिखा है क्या हम फरमाबरदार हैं या नाफरमानों में हैं। और आज अगर आपने इस बात का तज्जिया करना है, कोई मसीही या मुसलमान या यहूदी वो खुदा की पैरवी कर रहा है, तो खुदा के अहकामात ने जो हदें ठहराई हैं
हम उन हदों के अंदर हैं या नहीं हैं, अगर बाहर निकल चुके हैं तो क्यों दुआएं नहीं सुनी जा रही, क्यों मसाइल का हल नहीं मिल रहा। चंद आयात आपकी नजर करता हूं और फिर अपने मेहमान से आपको मुतारफ करवाऊंगा। आइए आदाब गुफ्तगू के ताल्लुक से सूरह अल-नहल 125वीं आयत है। गुफ्तगू कैसे करनी है? किसी ने कहा, मकूला है एक, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे ही बोले जा रहे हैं, जब पता नहीं कि बात कैसे करनी है। अगर किसी किताब को आप इल्हामी मानते हैं तो उसको तो पहले पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है। काश किसी के दिल में आज के दौर में उतर जाए ये बात, ऐ पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत, नेक का उल्ट क्या होता है वो मैं आप पर छोड़ता। अपने परवरदिगार के रस्ते की तरफ बुलाओ। अगर मजहबी गुफ्तगू करनी है, किसी को बुलाना है, तो ऐ पैगंबर, इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उनसे खिताब है और बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे का उल्ट आप पर छोड़ता हूं, अच्छे तरीके से उनसे मनाजरा करो, बातचीत करो। जो उसके रास्ते से भटक गया, बातचीत कर लो। जो रास्ते से भटक गया, तुम्हारा परवरदिगार उसे खूब जानता है, वो वाकिफ है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। अब यहां पर वाज़े कहा गया है लोगों को दानिश और नेक नसीहत। यहां पर जो दानिश, अगर आप उलमा की बात पढ़ेंगे तो दानिश से मुराद खुदा का कलाम, और खुदा का कलाम कितनी कुतुब को कुरान में बार बार कहा गया है। कितनी कुतुब हैं जिनको खुदा का कलाम कुरान में बार बार कहा गया है, और उसमें क्या रहनुमाई दी गई है। तुम्हारा कलाम पुर फजल हो, फजल से भरा हुआ हो, नमकीन हो, उसमें टेस्ट पाया जाए, पुरफज, लोगों को कलाम की रोशनी के मुताबिक जो कलाम ने तरतीब बताई है उससे बाहर ना जाओ। और हजरत सुलेमान फरमाते हैं खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। कलाम और खुदा के खौफ के साथ, यहां पर खौफ से मुराद है खुदा को अव्वल दर्जा देना, उसकी बातों को अव्वल रखना। फिर कह रहा हूं दानिश, कितनी कुतुब हैं उसकी जिसमें उसका कलाम है, अहकाम है, उनकी रोशनी में। और वो कहता है खुदा का खौफ, खुदा को अव्वल दर्जा देना, वो हमारे लिए मुकद्दम हो। हमारे अपने एजेंडे, हमारी अपनी घड़ी हुई तालीमात नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा का कलाम। तो गुफ्तगू के आदाब यहां पर बताए गए हैं, और खुदा जानता है जो रास्ते पर है या नहीं है। अगर किसी के पास पूरी दुनिया में पैमाना है कि उसको ये खुदा ने पैमाना दे दिया है, उसको खुदा ने ये कुलिया दे दिया है कि उस पर बातें खुल गई हैं, वो देख सकता है कि ये गुनहगार है, ये मोमन है, ये काफिर है, निशानियां तो देख सकता है, लेकिन असल कौन जानता है? वो खुदा जानता है। तुम्हारा काम यह है कि दानिश, नसीहत, अच्छे तरीके से बातचीत करो। जो भटक गया वो उस रास्ते पर जाए, खुदा जानता है, और जो राह पर है उसको भी खुदा जानता है। अगली बात देखते हैं, एक और हुक्म है इसी किताब में, यह है सूरह 29 है और उसकी 45वीं आयत है। और यहां पर वाज़े फरमान है, और अहले किताब से ना झगड़ो, अहले किताब से झगड़ा ना करो। स्लाइड प्लीज दिखा दीजिए। मगर ऐसे तरीके से जी जो नहायत अच्छा हो,
یہ ہے اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، پہلا حصہ ہے اس آیت کا، مگر ایسے طریقے سے جو نہایت اچھا ہو طریقہ وہ اپناؤ جس سے جھگڑا نہ ہو، اور ہاں آگے پھر شرط ہے جو ان میں سے بے انصافی کریں، اگر کوئی حد سے باہر جائے اس کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، تمہاری کتابیں اور ہماری کتاب ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تمہارا معبود ہمارا معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ ایک ہی ہے تو پہلی تین کتب اس کو کس طرح سے بیان کرتی ہیں؟ کیا تعلیم اس معبود کے بارے میں دیگر کتب میں پائی جاتی ہے؟ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، اس معبود کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، ڈھونڈو کیا تعلیم پہلے پائی جاتی ہے، اور اس تعلیم کی روشنی میں دیکھو کہ کیا خدا کی ذات بدل سکتی ہے، کیا خدا کا کلام بدل سکتا ہے، کیا خدا کی باتیں بدل سکتی ہیں؟ اگر بدل سکتی ہیں تو پھر تو ضرور ہے کہ آپ کہیے کہ بدلا جا سکتا ہے خدا کا کلام، اس کی ذات، اس کی باتیں، اور اگر بدلی نہیں جا سکتی تو پھر سورہ النساء 82 غور کرو، جھگڑا نہ کرو۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حالت آتی ہے جہاں پر ضرور ہے کہ ہماری نگاہ جانی چاہیے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ خاص خبرداری اور آگاہی اور پرکھ ہے۔ اور خدا نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ ہم انسان پرکھ کریں۔ یہاں پر کہا گیا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے جب اس کی تفسیر کی ہے تو وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی عمر ہے، جب انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہی نکتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے اس پر اور زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، ایسا شخص، ایسی عمر جب وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کو باتیں بتائی جائیں اور وہ پھر بھول جائے، ایسی عمر، ایسی حالت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو تعلیمات پہنچائی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر سمجھائی جائیں تو فوراً بھلا دیا جائے۔ ایسی عمر میں، ایسی حالت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آج یہ واضح رہنمائی اور خبرداری ہے۔ سورہ النساء 82 غور کرو، غور و خوض کرو، دھیان کرو، ڈھونڈو، پرکھو، پڑھو، تاکہ تم پر تصویر واضح ہو جائے۔ اور اگلی آیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے یشوع کی کتاب ہے، یہ توریت کی آخری کتاب ہے، اور یہاں پر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اب خدا کا براہ راست کلام ہے خدا کے بندے جاشوا کے ساتھ، جو ایک رہنما تھا جس کو رہنمائی کرنی تھی، جو خدا کا پیرو تھا، اور یہ آیت ہم انسانوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا دل جو وہ انسانوں کے لیے چاہتا ہے
इसमें वाज़ेह रहनुमाई फरमाई गई है कि जो बातें मैंने तुम तक पहुंचाई हैं तुम्हारे मुंह से ना हटे। इससे मुराद यह है कि तुम जो बात करो, तुम्हारी जो सोच हो, तुम्हारा जो अमल हो, वो खुदा के कलाम की हदों से बाहर नहीं होना चाहिए। इससे इनहराफ ना किया जाए, तेरे मुंह से ना हटे, हर एक बात में यही हुक्म, यही बात मुकद्दम ठहरे। खुदा ने मोहब्बत रखी है, यह बात मुकद्दम होनी चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है, दिन और रात उसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके। दिन और रात, इससे मुराद यह है कि हम मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी की सारी सरगर्मियां जरूरी हैं, लेकिन वो तुम्हारा वक्त जो गौर खौज के लिए, ध्यान के लिए कलाम पर होना चाहिए। अगर आप दीगर कामों में मसरूफ रहें, यह शख्स बहुत मसरूफ था और खुदा कह रहा है कि दिन और रात दीगर मसरूफियात हों, लेकिन कलाम पर ध्यान, उसको पढ़ना, उस पर गौर खौज करना, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और फिर लिखा है, एहतियात करके अमल कर। यह शख्स बहुत ताकतवर शख्स था, बाइख्तियार शख्स था, बड़ा शख्स था, लेकिन उसको कहा गया है कि एहतियात करके अमल कर, तू खुद भी और जिन लोगों की तूने रहनुमाई करनी है, तेरा इख्तियार, तेरी कुव्वत ऐसा ना कर दे कि तू खुद भी ताबे ना रहे और जो तेरे मंजूर नजर हो वो भी कलाम की हदों से बाहर रहे। तू खुद भी अमल कर और जो तेरे साथ काम करने वाले हैं वो भी अमल करें। फिर खुदा का वादा है कि तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इकबाल मंदी और कामयाबी खुदा के दिल की ख्वाहिश है और उसकी राह, आपकी काबिलियतें, आपके स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग्स सब बड़ी अच्छी हैं, चाहे 5 PhDs भी की हो, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर खुदा की इस इकबाल मंदी और कामयाबी की राह, वो खुदा का कलाम, उसकी अहमियत, उसका इतलाक है। खुदा करें कि इन तालीमात की रोशनी में हम सब इंसान सीखें इकबाल मंदी जो खुदा की तरफ से है और कामयाबी जो खुदा की तरफ से है, वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन सके। सीखने के सिलसिले में ही हमने कुछ सवालात थे, उन पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं अपने मेहमान को मुतारफ करवाऊंगा और हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आज कि मसीहत में जब इंसान मर जाता है तो उसके बारे में क्या है कि उसकी रूह कहाँ जाती है, क्या है उसके बारे में मसीहत तालीम देती है? मरने के बाद रूह कहाँ जाती है और इंसान के साथ क्या होता है? जी ठीक है, तो मेहरबानी आप इस बात पर रोशनी डालें। जी इस पर रोशनी डालते हैं। पहले आप बताइए, आपकी जो तालीम है वो क्या कहती है, आपका क्या ईमान है इसके बारे में, आप क्या समझे हैं आज तक? आपकी तालीम, जिस भी मजहब की आप पैरवी करते हैं, उसमें क्या है? इस्लाम सर, इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, जी जी। और मेरा ये मानना है कि मौत के बाद इंसान का एक बरज़ख का एक नई कायनात खुलती है जिसमें वो जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मसीहत में क्या है मौत के बाद? पहली बात तो आप ये बताइए कि ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बरज़ख में जाता है इंसान, इसके बारे में आपको कहाँ से ये मिली तालीम के बरज़ख में जाता है? आपका जो अकीदा है, कहाँ से, इसकी बुनियाद कहाँ पर है? सर, इसमें इस्लाम में यही बताया गया है कि इंसान मौत के बाद दुनिया से दूसरी दुनिया में जो मुंतकिल होता है, तो उस जो दूसरी दुनिया है उसे बरज़ख, मकाम में बरज़ख कहते हैं, जहाँ इंसान क़यामत के दिन तक रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी कोई बुनियाद, मैंने अर्ज़ किया, कोई कुरान की आयत है इसके लिए या कोई हदीस है, ताकि पता चल सके कि आप ये बात आपको मिली कहाँ से, फिर उस पर भी बात करें। सर, मैं भी इस पे, मैं स्टूडेंट ही हूँ, मतलब दोनों किताबों का, तो मैं भी इस पे, मैंने लेक्चर्स ही सुने हैं, तो मुझे भी ऑथेंटिसिटी 100% नहीं है, इसीलिए मैं आपसे ज़रा जानना चाह रहा हूँ
फिर मैं देखूंगा कि दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया। नसीहत क्या कहती आप है। ये कह रहे हैं कि आपने लेक्चर सुने हैं, लेकिन किसी ने भी आपको इस बात की कोई बुनियाद, किताबें इल्हामी जो हैं, कुतुब इल्हामी हमारे पास हैं, उनमें से कोई आपको इसकी बुनियाद कोई नहीं बताएगी जितने लेक्चर आपने सुने हैं, जी तो आप सर, ये कह रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो फिर हम इस बात को आज खोलते हैं आपके सामने। मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया। मुतारफ करवाना चाहता हूँ प्रोफेसर असगर अली साहब, बड़े एहतराम के साथ। असगर भाई कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं, और बड़ी बड़ी शुक्रिया है जनाब, खास तौर से ऐसे साहिबान के लिए जो बड़े प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया भी है कि वो उस नौजवान ने लेक्चर सुने हैं बरज़ख के बारे में, लेकिन उसकी बुनियाद जी तौरेत, ज़बूर, अंजील या कुरान की किन आयात पर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई उन्हें पता नहीं है। तो चूँकि आप दोनों अतराफ़ के जो इल्म इलाही के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, आप उन पर दस्तरस रखते हैं, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि मौत के बाद बरज़ख है, अगर है तो क्यों है, और किसने कहा ये है, जी किस फरिश्ते ने ये रिवील किया, किस इल्हाम से ये बात आई, आज इसको कैसे समझा जाए, जी तो यहाँ से आगाज़ जी कीजिए। जी, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं। अब आप पढ़ेंगे सूरह अल मरियम, सूरह 19 आयत नंबर 70 और 71 में, तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे रब ने ये तय कर दिया है, अल मकजिया, कि तुम में से हर एक उस जहन्नम से गुजरेगा। और इसके ऊपर उलमाओं के बारे में खास तौर से आप पढ़ेंगे, अल राजी हैं और तफसीर इब्ने कसीर हैं, इब्ने अब्बास है, जलालैन हैं। ये तमाम लोग क्या कहते हैं कि हर एक इंसान जब वो मुसलमान जब मरेगा तो वो जहन्नम में जाएगा और क़यामत के दिन तक वो वहाँ पे रहेगा। और एक ये है कि क़यामत के दिन जब खुदा उससे खुश होगा तो कुछ लोग उसमें से बिजली की तरह तेजी से निकलेंगे, कुछ लोग घोड़े के समान वहां से तेजी से निकलेंगे, कुछ लोग पैदल चलने वालों की समान, और कुछ लोग चींटियों के मानिंद स्लोली निकलेंगे। अब उसके ऊपर एक जो दूसरा जिक्र है वो है सिराते पूल के बारे में। आपको मालूम है कि जब लोगों का इंसाफ होगा तो आपको मालूम है कि जन्नत और जहन्नम के बीच में एक पूल होगा, और वो पूल जो होगा, ये सर का जो हमारा बाल है, इस बाल का 7 हिस्सा में से एक हिस्सा होगा, इतना बारीक और पतला होगा। और जब लोग चलेंगे तो रास्तबाज लोग वो आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन जो गुनहगार हैं वो उस जहन्नम में गिरेंगे और हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। अब ये जो लफ्ज मकजिया है, कुरान में 2 जगह आता है सेम सूरह में। सूरह मरियम आयत नंबर 21 में है कि ए मरियम, मैं तुझे बड़े खुशी की खबर सुनाता हूं, तुझे एक पाकीज़ा बेटा होगा, यानी हजरत मसीह, और उसे खुदा दुनिया के लिए रहमत मुकर्रर किया है। लेकिन वही सूरह 19 आयत नंबर 70 और 71 में है कि तुम में से हर एक लोग उस वरूज, यानी वो जहन्नम से गुजर के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे उलमाओं की राय है कि इसका मतलब क्या है। अब आपको बाइबल में तो इसके बारे में मालूम है कि यूहन्ना के इंजील 16 से लेके 17 में लिखा है कि शरीयत तो हजरत मूसा के जरिए आया, लेकिन फजल और सच्चाई हजरत मसीह के जरिए आया। और रोमन 3 का 23 और 6 का 23 में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, हर एक इंसान जो गुनाह करे वो मौत के लुकमा बन जाएगा। लेकिन रोमन 3 का 26 में लिखा है, 23 से लेकर 26 में, मगर खुदावंद का फजल करम हजरत मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अब ये जिक्र कहीं ना कहीं हमें कुरान में मिलता है कि हर एक इंसान जब मरे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, लेकिन कुरान के मुताबिक सूरह मरियम सेम आयत नंबर 21 में हजरत मसीह को खुदा ने रहमत मुकर्रर किया। अब इससे मुराद क्या है? आप हमें मालूम है कि हजरत ईसा का नाम का मतलब है कि वह जो गुनाहों से बचाता है। और मुझे अगर वक्त देंगे तो मैं डिक्शनरी दिखा दूंगा कि फिरोजुल लुगात साहब जब ईसा इसके ऊपर लिखते हैं तो कहते हैं कि ईसा लफ्ज इब्रानी से आया, जिसका मतलब है वह जो गुनाहों से बचाता है। अब मैं थोड़ा सा इसका यहूदी मजहब की तरफ जाऊं और तब मैं मसीहत की तरफ आता हूं। आपको मालूम है कि लूका के इंजील
16 बाब में हजरत मसीह एक कहानी सुनाते हैं कि एक लाजरस था, बहुत गरीब इंसान, और एक बहुत बड़ा अमीर इंसान था। दोनों मरे। अमीर इंसान जहन्नम में डाला गया और गरीब इंसान हजरत इब्राहिम के गोद में पहुंचा, और वहां से उसने, वो जो अमीर इंसान था, जहन्नम में जलते हुए हजरत इब्राहिम से दरख्वास्त की कि ए अब्बा, ए बाप, हम पे तरस खाइए, क्योंकि मैं जहन्नम की आग में जल रहा हूं। लाजरस को भेजिए कि वो अपने उंगली को भिगोकर हमारी जुबान पे रखे ताकि मुझे तसल्ली हो। और तब हजरत इब्राहिम कहते हैं कि तू याद कर, जब इस दुनिया में था तो तू हर अच्छी चीज का लुत्फ उठा चुका है, लेकिन अब तू जहन्नम में है और लाजरस जो तकलीफ उठाया अब जन्नत में है। तो कहता है कि नहीं, ए मेरे अब्बा, आप मुझ पे तरस खाइए, या फिर एक नबी को इस दुनिया में भेजिए जो लोगों को बशारत दे। और हजरत इब्राहिम कहते हैं कि नहीं, उनके पास अंबिया कराम का कलाम है। अब सुनिए बड़ी गौर से, कुरान में लिखा है कि हरेक वो लोग, 40 का 70 और 71, हरेक वो लोग जो नबियों के कलाम को झुठलाते हैं, मैं उनके गले में तोक बांधूंगा, जंजीर बांधूंगा और इनको जहन्नम में घसीटूंगा। ध्यान से सुनिएगा, हरेक वो लोग जो अंबिया कराम के कलामों को झुठलाते हैं, हम उनके गर्दनों में जंजीर बांधेंगे और इनको जहन्नम के आग में घसीटेंगे। ये आयात और बता यही दीजिए बात प्रोफेसर साहब। हाँ, बड़ी माजरत। 40 का हाँ। 70, 40 का, जी, कुरान 40 का 70 और 71। और लूका की अंजील और भी बता दीजिए, इस लूका बात की को- अंजील प्रोफेसर साहब। हाँ, लूका के इंजील 16, लूका के इंजील बाब 16 आयत नंबर 19 से लेके 33 तक। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्रोफेसर और साहब, अब- यहीं से जारी रखिएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मोहतरम जी। फरीद साहब, बरज़ख का तस्वुर जो है ना, ये लूका की अंजील ने उसको वाज़े कर दिया है कि सिर्फ 2 जगहें हैं। अब ये जो तस्वुर है, इसके बारे में मैं आपको दावत देता हूं कि ये कहां से, कब ये शामिल हुआ। ये तस्वुर मसीहत में अगर आप देखेंगे तो जो रोमन कैथलिक कलीसिया है, उसमें इसका तस्वुर किसी ना किसी तौर से आपको मिलेगा। और फिर इस्लाम में जितने लेक्चर आपने सुने हैं ना, उनका जवाब ये है। और अब आगे देखिए प्रोफेसर साहब, कुरान की वो आयात जो इस बात को, जो लूका की अंजील में है, वाज़े कर रही हैं। अब जब वो लेक्चर आप सुने तो उन तमाम उलमा को ये हवाले जरूर भेजिएगा। मोहतरम प्रोफेसर साहब जारी सुने- रखिए। जी, सूरे गाफिर 40 का 70 और 71, यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने हमारे अंबिया करामों के कलाम को झूठा ठहराया। अब ध्यान रखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि खुदा का कलाम बदल गया, जो आपने शुरू में कहा था कि सूरे नाम आयत नंबर उसका 116 में कि ला मुबद्दला ली कलमात इलाही, खुदा के कलाम कभी बदला नहीं जा सकता है। और यहाँ पर लिखा है सूरे गाफिर में कि जो इसको झुठलाते हैं, हम इनके गले में जंजीर बांध के जहन्नम में डालेंगे इनको। और अब आ जाए हम थोड़ा सा यहूदियों के ऊपर कि फिरकी अबोध एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि दानियल उसके 12 बाब का 1 से लेकर 4 आयत को पढ़ते हुए कि जैसे दानियल हजरत फरमाते हैं कि जो लोग गुनाह करते हैं वो क़यामत के दिन जी उठेंगे और जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन जो रास्तबाज हैं वो जी उठेंगे और वो सितारों की मानिंद चमकेंगे। और तब वो उसके ऊपर कहता है कि जब एक इंसान मरता है तो होता क्या है कि जैसे इंसान मरे, कब्र में उसकी अजाब होना शुरू हो जाती है और वहां पे उससे पूछा जाता है कि तू कौन है, और वो नाम बताएगा, फिर तेरा मजहब क्या है। और अगर वो तौरेत को पढ़े और वो कहे कि मूसा मेरे नबी हैं, तब तो खुदा उसे माफ कर देगा। अब ये ख्यालात आपको इस्लाम में भी मिलेगा। लेकिन अब हम आते हैं हजरत मसीह के ऊपर। आपको मालूम है लूका के इंजील, हजरत मसीह जब सलीब पर मसलूब हुए तो उनके एक बाएं तरफ एक इंसान था और एक दाहिने तरफ, और एक इंसान ने हजरत मसीह की मलामत की ये कहते हुए क्या कि अगर आप मसीह हैं तो मुझ पे तरस खाइए, मुझे भी बचाइए और खुद को भी बचाइए। लेकिन दूसरा शख्स कहा कि देख, तू और मैं, हम तो जालिम हैं, हम खताकार हैं और हम इस सजा के लायक हैं,
لیکن یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں تو باتیں کر رہا، یہ تو بے گنہگار ہے۔ اور تب اس نے کہا کہ اے خداوند، جب آپ اپنے بادشاہت میں آئیں گے تو میری خبر لینا۔ اب سوال یہ ہے، علماء یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ قیدی حضرت مسیح کو خداوند کیسے جانتا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے، جب پڑھیں گے لوک 7:17 سے لے کے 23 میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت یوحنا جب جیل میں تھے تو انہوں نے دو لوگوں کو بھیجا کہ پوچھو کہ آنے والے آپ مسیح ہیں یا ہم کسی اور کے بارے میں انتظار کریں۔ اور تب حضرت مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، مردوں کو زندہ کیا، کوڑھیوں کو پاک صاف کیا، اور کہا کہ جاؤ اور کہو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں، کوڑھی پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اب یہ جو معجزات ہیں انہوں نے کیوں کیا؟ یہ یسعیاہ 35:3 سے لے کے 5 میں لکھا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے پاس آئے گا اور وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا۔ اور یہ بشارت انہوں نے حضرت یوحنا کو بتایا۔ حضرت یوحنا نے قیدیوں کو یہ خوشخبری سنایا، اور ان میں سے یہ قیدی تھا جو ایمان لایا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ خداوند مسیح ہے کون، اس لیے اس نے کہا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا، حضرت مسیح کا جواب کیا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ، جب آئے گا تب نہیں، آج ہی میرے ساتھ تو جنت الفردوس میں ہوگا۔ اور یہی بات حضرت مسیح کہتے ہیں یوحنا اس کا 5:24 سے لے کے 29 میں، کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان رکھے وہ موت کو پار کر کے زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے نہیں، حضرت بہت شکریہ۔ مسیح میں ایمان رکھنے سے، جی میں آپ کو 1 منٹ دے دیجئے، ہمیں کچھ سیکنڈ دے دیجئے، کیونکہ حضرت مسیح ہمارے خاطر مصلوب ہوئے، ہمارے گناہوں کو لے کے صلیب پر چڑھ گئے، اسی لیے قرآن میں لکھا ہے سورہ مریم 19:21 میں کہ حضرت مسیح خدا کے رحمت ہے۔ اور وہی قرآن 19:70 اور 71 میں لکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان پر، ہر ایک بشر پر یہ لازم ہے کہ وہ جہنم میں جائے، وہیں پر تا قیامت تک رہے گا۔ اور یہ کیوں باتیں ہیں؟ آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو اہل کتاب سے جا کے پوچھئے، اور اہل کتاب سے خدا کیا کہتا ہے؟ آپ انجیل سے فیصلہ کرو۔ تو انجیل کیا بتاتا ہے کہ یس، ہر ایک انسان جو گنہگار ہے سزا کے لاحق ہے، لیکن حضرت مسیح ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گئے۔ اس لیے حضرت مسیح میں یہ یقین ہے جو فرید صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسے حضرت مسیح نے اس قیدی سے فرمایا تھا۔ جی بہت شکریہ، پروفیسر صاحب نے بہت واضح بات بیان فرما دی ہے۔ اور جب یہ انہوں نے کوٹ کیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو عبرانی زبان میں جب بھی اس لفظ کو بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ غور کرو، زور دیا جاتا ہے اس بات پر کہ تمہیں ضرور اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب اگر کوئی نظر انداز کر دے تو اس کی اپنی بات ہے، اور سچائی جب ہم تک پہنچتی ہے تو پھر یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم رد کر دیں یا قبول کر لیں۔ فرید صاحب، جو بات بتائی گئی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا کوئی اور اس تعلق سے بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاید کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، ہم بات کریں گے اس وقت۔ جی فرید صاحب، آپ نے سنا تو کوئی اور بات اس تعلق سے کرنا چاہیں گے یا آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ نہیں سر، تسلی ہوئی ہے۔ میں سننا چاہوں گا، پروگرام آن لائن رہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کال کرتے ہیں، پوری دنیا سے لوگوں کو دعوت ہے، جو بھی شخص کال کرنا چاہے، محبت کی روح میں، سیکھنے کی روح میں حاضر ہیں۔ کلام خدا کی روشنی میں باتیں ہوں گی، اور یہ باتیں توریت، زبور، انجیل، قرآن سے ہیں، اور ان کتابوں پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ غور و خوض کی باتیں ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، دوسرا شخص دوسری طرح سے سمجھتا ہے، اور اس کے لیے میں ایک آیت آپ سب کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ 27ویں سورت ہے اور اس کی 92ویں آیت ہے، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں
जो रास्ते पर आएगा, जो ना आएगा उसका अपना फैसला है। खबरदार करना, बात पहुंचाना, और अंबिया के बारे में लिखा है वो खबरदार करने वाले थे, खुदा की बात पहुंचाने वाले थे। और वही बातें हैं जो हम तौरेत, ज़बूर, अंजील से करते हैं। और फिर हर शख्स की अपनी बात है, वो इसको माने ना माने। प्रोफेसर साहब, हमारे मुसलमान बहन भाई जो ख़ास तौर पर उनको तस्लीस समझ नहीं आती, आपके पास इस वक्त 20 मिनट हैं, कैसे वो तस्लीस को समझें? क्या उनके एतराज़ हैं जो उनको समझ नहीं आते? तो 20 मिनट में आप आज ये बताइए कि ये बात है जो उनको समझ नहीं आती, तो ऐसे वो समझें। तो आपका वक्त है, तस्लीस पर बात कीजिए। जी, और बड़े बड़े शुक्रिया जनाब, क्योंकि हमें ये रियली क्लैरिफाई करना है। इसमें कई सारे मतलब इसके डायमेंशन है जिसको हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और पिछले बार जो हम लोग देख रहे थे कि एक जो लोगों को डरा दिया जाता है, सूरह निसा 4:48 पढ़ के कि खुदा हर गुनाहों को माफ करेगा लेकिन शिर्क को नहीं करेगा, और इसलिए लोग डर जाते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट में हजरत मसीह का कलाम है। हजरत मसीह कहते हैं मत्ती 12:30 और 31 में कि इंसान के हर गुनाह माफ होंगे, लेकिन अगर कोई पाक रूह के खिलाफ में कहे तो ये माफ कभी नहीं होंगे। और इसलिए हमें दोनों तरफ तहकीक करना है कि ये भी नबी हैं, पैगंबर इस्लाम को भी लोग मानते हैं, और ये बहुत संजीदा बात है, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर तहकीक नहीं किया, हजरत मसीह के लफ्जों में अगर आप तस्लीस को नहीं मानते तो जहन्नम में जाएंगे, पैगंबर इस्लाम के लफ्जों में अगर आप मानते हैं तो जाएंगे। तो ये रियली बड़ी संजीदे से हमें सोचना पड़ेगा। आइए हम देखे थे कि सूरह निसा 4:48 आयत जो उतरी थी, हम पहले देख चुके हैं, इसलिए वक्त जाया नहीं करेंगे। वो वहसी के बारे में उतरा था जो मुशरिक नहीं था और उसे यहूदियों से कुछ लेना देना नहीं है। 4:116 आयत जो हमने पढ़ा था वो भी किसी मसीही के बारे में नहीं था, उसके बारे में भी हम ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। वो तोमा के बारे में था कि तोमा एक मुशरिक था और मुसलमान बना, उसने चोरी किया और वो पकड़ा गया, और फिर क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने उसके हक में फैसला नहीं सुनाया, वो फिर मुशरिक बन गया। उसके बारे में ये कलाम कहा गया। लेकिन इसके बाद जो बड़े संजीदे के साथ हमें सोचना है वो है कुरान उसका 35:5 आयत में, जहां पर लिखा है कि ये जो वाकया था वो मक्का के लोग पैगंबर इस्लाम के खिलाफ शिकायत किए थे, और इस पर उनके चचा ने पूछा था कि तू क्या चाहता है, और आपने फरमाया था कि ये लोग तमाम बुतों को छोड़ दें और एक माबूद है जिसे अल्लाह कहते हैं, उसकी ये इबादत करें। और थोड़ा सा इसके ऊपर हमें तस्रीह करना जरूरी है कि अब वो अल्लाह जो है जिसके बारे में एक हमने बाहर से शहादतें बताई थी, लेकिन दूसरा कुरान के अंदर बता दें कि वो अल्लाह कौन है। हमने बाहर की शहादतें के बारे में बहुत सारे रेफरेंस दिया था, लेकिन अंदर से थोड़ी सा हम बता दें इसके बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप अगर इब्ने हिसाम पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर है अब्दुल मुत्तलिब का घराना, तो लिखा है कि 4 अरब के लोग ऐसे थे जो कि बुत परस्ती से आजिज हो चुके थे, और ये लोग इब्राहिम के खुदा को मानते थे। उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था जैद बिन अमर, और जैद बिन अमर ने पैगंबर इस्लाम को इस खुदा के तरफ रहनुमाई किया था उनका। और इसका सबूत एक तो हदीस से हमने देखा था, लेकिन आज हम कुरान से चाहेंगे कि जो इस सवाल को जानना चाहते हैं वो इस आयत को पढ़ें। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 135 में लिखा है कि हजरत इब्राहिम तो हनीफा थे, एंड मुसलमान भी हनीफा हैं और उन्हें उनके राह पे चलना चाहिए। सूरह अल इमरान 3:67 में लिखा है कि हजरत इब्राहिम तो हनीफा थे, यानी मुसलमान भी हनीफा हैं, और आज हनफी एक ग्रुप भी चलता है। फिर सूरह अल इमरान 3:95, सूरह निसा 4:125, यहां पर खुदा पैगंबर इस्लाम को हिदायत देता है कि आप हजरत इब्राहिम के राह पर चले, यानी आप हनीफा बने। और तब हजरत इब्राहिम के मिल्लत पर चलने के लिए खुदा कम से कम 7 बार पैगंबर इस्लाम को हिदायत देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 130 से लेकर 33 में कि खुदा ने मुझे ये हिदायत बख्शी है कि मैं मिल्लत इब्राहिम पर चलूं, यानी इब्राहिम के मजहब पर चलूं। फिर सूरह अल इमरान 3:65 से 68 में, एंड सूरह अल इमरान 3:95, सूरह अनाम 6:161
और सूर्य हज 22 का 77, कुछ कुरान में 78 है, एंड अशुरा यानी 42 का 13 में। तो कम से कम ये 10 मुकाम पर लिखा है कि हजरत इब्राहिम हनीफा थे और उनके मजहब पर चलना है। लेकिन जनाब, ये हनीफा थे कौन? ये हनीफा एक कल्टी क्रिश्चियनों का ग्रुप था जो सीरिया में थे। वो लोग सही मसीहत के हिस्सा नहीं थे, एंड उनके माबूद के ऊपर पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि उसी माबूद को ये मानते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि प्रोफेसर इसको साहब, ये अरब के लोग, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये हनीफा ग्रोह की बात की। तो आप ये बताइए कि इसके बारे में मालूमात लोगों को कहाँ से मिल सकती हैं? किसी किताब में या कहीं आप बता सकते हैं किसी वेबसाइट से? हनीफा जो ग्रोह है, इनका फेथ क्या था, ये किस इलाके में थे, इस पर कोई रिसर्च मौजूद है, कोई किताब मौजूद है? जी, और 3 किताब जो एकेडमिकली स्कॉलरली किताब है। एक तो फॉरेन वोकैबुलरीज ऑफ ऑथर जेफरी साहब का है, वो बहुत अच्छी किताब है जो इसके ऊपर रियली मतलब हर किस्म के सबूत को वो लेकर के आते हैं। दूसरा इब्ने हिसाम साहब जो है, इब्ने हिसाम साहब का जो बायोग्राफी है सीरत रसूलुल्लाह, तो वो है अब्दुल मुत्तलिब का घराना, तो वो तो इस्लामी किताब है। तीसरा आप जानते हैं कि ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ कुरान जो एम.ए. क्लेयर टिसडॉल साहब हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी इसके ऊपर तहकीक की है। और चौथा थोड़ा सा इसके बारे में हिंट देते हैं इब्राहिम गर्गरे, जिनका एक किताब है जुडाइज्म एंड इस्लाम। तो ये 4 जो मुसन्निफ लोग हैं इसके बात को वाजे करते हैं। और क्योंकि ये तारीखी वाकयात है तो हमें तारीख में जाना बहुत जरूरी है। अब हम आगे आ जाएं जनाब। एक सेकंड दीजिएगा। अब दूसरा, जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा ताकि इस बात को हम वाजे कर दें। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, अहमदियों का जो इस वक्त ग्रोह है जिसको दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है, तो दायरा मसीहत की उस दौर की तारीख में अगर आप ये हनीफा ग्रुप को, हनीफ ग्रुप को देखेंगे तो ये भी उस दौर में ऐसे ही था जैसे आज जो हल्का इस्लाम है उसमें से अहमदियों को खारिज समझा जाता है कि वो जो ग्रोह है वो हकीकी इस्लाम की पैरवी नहीं करते। तो ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि जो लोग हैं उन पर ये बात वाज़े हो जाए। अब प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सी आयात भी पेश की हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक रिसर्चर हैं और आप तफसील में जाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 14 मिनट हैं। मैं चाहूँगा 10 मिनट में आप बाप और बेटा और जो रूहुल कुद्स है, 3 जो हैं, ये दरअसल एक हैं और लोग समझते नहीं हैं। 1400 साल हो गए हैं। तो आपने ये हनीफा की तालीम बताई है, आपने जो हवाला जात हैं पहले आपने पुराने अहदनामा से, कुरान में से भी दिए हैं। तो बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, लोग इसको एक जो हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, क्या रुकावट है इसको समझने में और वो रुकावट दूर कैसे हो सकती है? इस पर थोड़ा सा तबादला ख्याल कीजिए। फिर जो तारीख की बातें हैं इस पर हम फिर भी आने वाले दिनों में बात कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि रुकावट क्या है इसको समझने में और वो रुकावट कैसे दूर हो सकती है, ताकि फिर जो तफसील है वो तो रुकावट दूर होने के बाद भी लोग मुतालिया कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप थोड़ी सी बात करना चाहें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। जी, और बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब आपका कि आपने इसकी वजाहत कर दी, क्योंकि यहूदी लोग उस हनीफे ग्रुप को सच्चा यहूदी नहीं मानते थे और मसीही लोग उस ग्रुप को सच्चे मसीही नहीं मानते थे। और वो जो हनीफा लोग हैं उन्होंने एक किताब है जिसका कहते हैं द टेस्टामेंट ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम का सहीफा, और वो किताब लिखा गया था इजिप्ट में कुछ बुत परस्तों ने। और ये लोगों को ये नहीं मालूम कि सचमुच में इब्राहिम के ऊपर कोई किताब नहीं है। इब्राहिम की जो इंफॉर्मेशन है वो तौरेत से मिलता है, और ये लोग इस गफलत में थे, इसलिए यहूदियों ने भी इनकार कर दिया इनका, मसीहों ने भी इनकार कर दिया। और उस पे अगर कोई कहे कि मैं उस इब्राहिम के खुदा को मानूं, तो ये रियली एक सवाल का मसला है कि हमें तहकीक करना चाहिए। अब आते हैं हम कि दूसरी क्या क्या हमारे सामने। प्रोफेसर साहब एक सेकंड दीजिएगा। जो प्रोफेसर साहब ने बात की है जी, ये आसान तर्जमा कुरान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का है,
اور اس کے جو پہلے 10 صفحات ہیں اس میں سے بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ بہت سے بت پرست اور بدعتی جو فرقے تھے وہ بھی ابراہیم کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ دور حاضر کے جید علماء میں سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام ہے، تو آپ اس بات کی تصدیق کے لیے یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی جاری رکھیے۔ جی اور میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں یا سامعین، ہم ان سے بڑے حلیمی کے ساتھ درخواست کریں گے کہ جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پلیز بڑے مہربانی سے اس کو سنیے اور تب آپ اپنی رائے دیجئے۔ تو دیکھیے، جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس تثلیث کا حقیقی واقعات انبیاء کراموں نے اپنے کتابوں میں کیا ہے، اور جناب جب تک آپ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ اس حقیقی تثلیث سے واقف کیسے ہوں گے؟ تو سب سے بڑی جو غلطی ہے لوگوں کی وہ یہ کہ اس حقیقی کتاب کو یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جس کو انبیاء کراموں نے لکھا ہے، خدا کے ہدایت سے لکھا ہے، اور جس میں تثلیث کی اس میں تصریح کی گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ لوگ پڑھیں، یہ اور میں تشریح 3 کیا واقعہ ہے اس کے لیے پیش کر دوں۔ پروفیسر صاحب، یہ تشریح کیا ہے آپ بتائیے؟ باپ کی تشریح کیسے، بیٹے کی کیسے، اور روح کی کیسے؟ جی، اور ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آئیے ہم کل تو تھوڑا پچھلے پروگرام میں ہم نے باپ کے لیے دیکھا تھا، آج ہم تھوڑا سا بیٹے کے بارے میں دیکھ لیں کہ اب بیٹے جو حضرت مسیح ہیں ان کے لیے مسیحیت یہ مانتا ہے کہ وہ خدا ہیں، اور خدا اس لیے ہیں کیونکہ ان میں خدا کی تمام ذات و صفات ہے، اور وہ انسان ہیں کیونکہ ان کے اندر انسان کی تمام خوبیاں ہیں۔ اور یہ 300 سال کے تحقیق کے بعد نائسیا کے کونسل نے یہ طے کیا تھا، اور اس کے لیے 62 آیات ہے جس کے اوپر انہوں نے تحقیق کیا۔ اب ہم کم سے کم 3-4 پڑھ دیں تو نمبر 1، انہیں پتا چلا کہ خدا ہونے کے لیے ایک انسان کو 4 کوالیفیکیشن چاہیے، اور جب تک وہ 4 کوالیفیکیشن نہ ہو کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کے انجیل اس کا 10:33 میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مسیح سے کہ آپ ایک انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اور تب چرچ کے لوگوں نے اس پہ تصریح کی کہ کیا حضرت مسیح خدا ہونے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں؟ تو دیکھیے 4 کوالیفیکیشن ہے۔ نمبر 1، ہم اور آپ انسان ہیں اور ہمارا آپ کا لیمیٹیشن ہے، اگر آپ ایک مقام پہ ہیں تو دوسرے جگہ جسمانی طریقے سے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو ہر جگہ ایک ہی بار حاضر ناظر رہتا ہے۔ اور حضرت مسیح کہتے ہیں متی کا انجیل 18 سے لے کے 20 میں کہ جہاں 2 اور 3 میرے نام سے اکٹھا ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں۔ اب علماؤں کا اس پہ ڈسکشن یہ تھا کہ اگر حضرت مسیح ایک انسان ہے تو وہ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، اگر وہ خدا نہیں تو انہیں یہ کیسے معلوم کہ کون شیطان کے نام سے ہے اور کون خدا کے نام سے؟ تو یہ بات کہنے کے لیے پہلے انہیں علم الغیب ہونا پڑے گا، انگریزی میں کہتے ہیں اومنیسینٹ۔ جب تک وہ علم الغیب نہیں ہے تب تک وہ نہیں جان سکتے ہیں کہ کون ان کے نام سے ہے اور کون ان کے نام سے نہیں ہے۔ 2-3 واقعات، جیسے یوحنا کا انجیل باب 1 میں لکھا ہے کہ جب نتنیل آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خداوند آپ سچ مچ میں اسرائیل کے بادشاہ ہیں، اور خداوند مسیح کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہاں آیا میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا۔ اب لوک میں لکھا ہے 7:33 سے لے کے 41 میں کہ جب لوگ سوچ ہی رہے تھے اپنے دل میں تو حضرت مسیح بول پڑے۔ اب مرکس میں لکھا ہے 2:5 سے لے کے 11 میں کہ جب لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے یہ کون ہے جو کہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو حضرت مسیح بول پڑے۔ تو کتاب مقدس میں آپ کو یہ 12 بار ملتا ہے کہ حضرت مسیح ہر انسان کے دلوں کو جانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر لوگوں کا ایک سوالات ہے، جیسے متی اس کا 24:36 میں کہ مسیح نے کہا کہ آنے والے دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ بیٹا بلکہ صرف باپ، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور اگر حضرت مسیح ہیں تو وہ کیوں نہیں جانتے؟ لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور شارٹلی ابھی بتا دوں۔ نمبر 1 سوال ہے 24:1 اور 2 میں، جب خداوند مسیح نے کہا کہ یہ ہیکل کا ایک بھی پتھر دھرا نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ توڑا جائے گا، تو اس سمے لوگوں نے کہا کہ خداوند یہ کب ہوگا، تیرے آنے کی نشانی کب ہوگی، اور اس دنیا کا آخرت کب ہوگا؟
اور تب حضرت مسیح کہتے ہیں 24:14 میں کہ جب انجیل تمام دنیا میں بشارت ہو چکے گا تب ہوگا۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں میرے آنے کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے مسیحی آئیں گے، ہر جگہ اکال پڑے گا، وار اینڈ ورلڈ وار ہوگا۔ اور تب وہ کہتے ہیں 32 آیت میں کہ انجیر کے درخت سے ایک یہ لیسن سیکھو کہ جب وہ ہرے پتے آتا ہے تو کہتے ہو کہ گرمی آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ تمام نشانیاں ہو تو سمجھ لینا کہ میرا آنا دروازے پر ہے۔ اور تب وہ کہتے ہیں آیت 34 میں آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ تو گریک میں بیٹے کے لیے 2 لفظ ہے، میں چاہوں گا کہ سامعین آپ سمجھیے۔ نمبر 1 ہوئس اور دوسرا ہوئی۔ تو ہوئس دا سن ہے اینڈ ہوئی دا سنس ہے۔ تو گریک میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اولادوں میں کوئی نہیں جانتا، اور اس کے لیے مسیح 5 اگزامپل دیتے ہیں۔ نمبر 1، نوح کے زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ فلڈ کب آئے گا۔ نمبر 2، گھر کے اندر جو گھر کا مالک ہے اسے نہیں معلوم کہ چور کب آئے گا۔ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ان میں سے ایک کو نہیں معلوم ہے کہ کون اٹھا لیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، انہیں نہیں معلوم ہے کہ کون اٹھائی جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 10 کنواریوں میں 5 کنواریاں جو بیوقوف ہیں انہیں نہیں معلوم کہ دلہا کب آئے گا۔ اور تب 25:13 میں وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے تمہیں نہیں معلوم۔ پروفیسر صاحب ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا، بہت شکریہ، پھر آپ کے ساتھ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات رکھنا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے یہ سورہ المائدہ اور اس کی جو 44 آیت ہے پڑھ رہا ہوں۔ اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے اتارا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں، یہاں کافر کہا گیا ہے۔ پھر دیکھیے المائدہ اسی ورس میں، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے اتارا ہے ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد اور جس نے المائدہ 47 آیت، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے اتارا ہے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ تو اب دیکھیے جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کس نے اتارا ہے، سنیے، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ تو جو اللہ نے اتارا ہے جو اس کے مطابق نہ چلے، المائدہ کافر ہے، المائدہ ظالم ہے، اور المائدہ 47 نافرمان ہے۔ اور فرمانبردار کہاں ہوں گے؟ نافرمانی جو کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کلام ہم تک پہنچا ہے، دین میں جبر نہیں، خدا نے آزاد مرضی ہم کو دی ہے تاکہ ہم غور کریں، اس کی باتوں کو سمجھیں، تاکہ ہم اس کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں، اور محبت، سلامتی، امن کو پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے لے کر جائیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں آپ کا میزبان دانیال۔